Done. Okay. Done? Are going to be getting listed. Similarly, we play a role of finding the right companies. So we are a company which look at companies like this. We are size agnostic, so it is not only SME issues, but we also do main board issues. But the thought is to have very high, evolving, empowering entrepreneurs is our thought. So about Zapfresh, आप लोग ने सब साउथ में देखा होगा, हैदराबाद, बैंगलोर एंड नाउ इवन इन मुंबई 10 साल पहले लेडीज लोग कोई भी ना दारू लेने नहीं जाती, राइट? बिकॉज वो लिविंग लिक्विड्स आया, उसके बाद अलग अलग ब्रांड्स आए. अब या तो आप रूट लेगर से लाते थे या आपको खुद लाना पड़ता था. उसी तरह आप 10 साल में देखोगे कि मीट शॉप में जाके कितने लेडीज जाके आज अपने घर की लेडीज जाके शॉपिंग कर सकती है, नहीं कर सकती है. सो वो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. मैं आपको अगर बताऊं, इंडिया में आज के दिन 38 करोड़ अंडे रोज सुबह खाए जाते हैं, 13,700 टन चिकन रोज खाया जाता है, राइट? तो मार्केट तो इतना बड़ा है. इट इज लाइक 95% स्टिल ऑर्गेनाइज्ड, एंड ये सिर्फ 5% ऑर्गेनाइज्ड हुआ है. उसमें DSM Fresh is also a play. So it is the first D2C company in the food space getting, we are taking them through the listing route. They have also got some very good investors in the prior. So Manchanda ji will take you through the entire journey that way. But yes, the TAM is huge. And because of the vacuum, the freshness is intact for a slightly longer period. And on the quality bit, other than cold chain, the industry really needs support in the ecosystem, which is missing. And we are working also with government on different ideas and initiatives where we can look at improving the quality feed which is provided to the chicken. The support at the farm, which means providing a veterinary doctor on a frequently basis to avoid any outbreak of diseases. Then we have these processing units where we are also giving them security and advance so that they can use that capital to improve and work with us as per our expectations. So there's a SOP which is given to both the sides of the partners. They follow that and they give us the desired quality, which is where we are adding very different nitty-gritties which are there on the product quality, including the type of the feed or the infrastructure, the type of machinery required, or there could be any other hygiene factor which is missing, like biohazard controls at the farm. Those are not something which is very natural to the farmers. So when we come, we bring that sophistication and improvement which delivers quality as per what we want. I think this is very, very critical. The other bit is the cold chain, where you keep the product under a temperature, and that's about it. You don't really have to do much other than, I think, this rest. Otherwise, you can exceed more on quality and make it more superior and premium. But our focus is value, so we want to cater to the Bharat rather than the premium segment. So we have to manage your quality and price parity together. Team में आपने स्टार्ट किया है, as you say. So almost 10 years. Tell us about the journey of Zapfresh और किन चीज़ों में डील करती है और अभी क्या कुछ आपका आगे का टारगेट है? देखिए, हम स्टार्टिंग हमने जब किया था तो उस टाइम पे वी वर द फर्स्ट D2C ब्रांड. कोई था नहीं D2C में उस टाइम पे, तो हमने वो एक रेवोल्यूशन शुरू किया है. मेरे हिसाब से एक नया इनिशिएटिव था जो कि स्टैंडर्डाइजेशन में बिलीव करता था. उसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स भी आए, तो जर्नी तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है, जिसमें मार्केट बिहेवियर, कस्टमर सेंटिमेंट, हर एक चीज़ के अंदर हमने ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखा है. एंड आई थिंक उसने फ्यूल किया है ग्रोथ हमारा, जहाँ पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन और प्रोपेंसिटी टू पे बढ़ गया है, जिसके कारण brands like Zapfresh and a lot of other brands are also there. So overall, I would say that the journey has been more of a learning, where the idea has been कि that वो जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, कि सप्लाई चेन पे हमने बहुत मेहनत करी है
और उसी के कारण आई थिंक हम एफिशिएंट एक बिज़नेस बना पाए हैं आज की डेट में। There are very few players in this market. So what makes Zephyr different and unique on site? से देखिए मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, 3 लाख करोड़ का साल का डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन हाइडली 0.1% होगा, और जो दूसरे भी प्लेयर्स हैं उनके साथ भी ऐसा है कि वो भी बड़े हैं, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत लार्ज है और इसमें सारे लोग एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ इंडस्ट्री इम्प्रूव कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और एक इनिशिएटिव एक पॉजिटिव लेवल पे चलता है रादर देन कम्पीटिंग विद ईच अदर। आपने कुछ की मार्केट्स बताए जहाँ पे काइंड ऑफ मीट पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा खाती है पॉपुलेशन वो साउथ में ही है, और आने वाले टाइम में हम थोड़ा और पेनिट्रेट करेंगे कर्नाटका में नियर बाय मार्केट्स में, बट लार्जली द फोकस इज़ कि जो अभी हम एग्जिस्टिंग मार्केट्स में हैं उसमें डेप्थ क्रिएट करें, क्योंकि पॉपुलेशन और साइज़ और कंजम्पशन का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इंडस्ट्री में, तो जंपिंग मार्केट्स इज़ समथिंग विच वी आर वेरी कॉशियस अबाउट, क्योंकि सप्लाई चेन भी बनाना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है, तो एक बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशनली हैवी कैटेगरी को सिंप्लीफाइड तरीके से बनाने में मेरे ख्याल से टाइम लगता है, वो हमने लगाया है, और अब डेप्थ में बनाने में ज़्यादा फोकस है। क्वालिटी एंड प्राइसिंग के बारे में क्या है? क्वालिटी प्राइसिंग में देखिए लोकल जो मीट शॉप है उससे तो हम थोड़ा ऊपर है प्राइस, अबाउट 15 से 20% के आसपास, बट लेकिन कस्टमर खुशी खुशी उतना प्रीमियम देने के लिए तैयार है क्योंकि उसको वेल पैकेज्ड, टेम्परेचर कंट्रोल और फिर वैल्यू भी मिलती है कि भाई आप अगर एक पोर्शन कुछ एडिशनल भी दे रहे हैं तो उसमें आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, वो बहुत क्रिटिकल है। तो जनरली वो मिसिंग रहता है विद लोकल मीट ऑपरेटर्स। सो हमें ऐसा लगता है कि जितना हम वैल्यू दे रहे हैं उस हिसाब से हम प्राइस ले रहे हैं, ये मैच करने में भी बहुत टाइम लगा है हमारे को, तो ये एक हमारा स्ट्रेंथ है। लास्टली आने वाले 5 साल में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इट्स ऑलमोस्ट 10 years, व्हाट्स नेक्स्ट? See, the next is to become a very diversified business, जहाँ पे हमारा ऑफलाइन में भी एक प्रेजेंस जो है वो स्ट्रेंथन करने का हमारा प्लान है, और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, इम्प्रूविंग द इकोसिस्टम इन द SME स्पेस, इम्पैक्ट टू द फार्मर्स, लार्जली जो अभी हम कर रहे हैं उसको आप एडिशनल 5x 6x लगा सकते हैं, जहाँ पे हम ग्रोथ एंटिसिपेट करेंगे, और मार्केट कोई प्रॉब्लम, साइज़ कोई प्रॉब्लम है नहीं, इट इज़ जस्ट अबाउट योर बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ यू आर एबल टू स्केल इट। नहीं, आई थिंक हमारे सेक्टर में थोड़ा सा टैबू है, थोड़ा सुपरस्टिशन है, खाते सब हैं, बात किसी को नहीं करनी है, तो वो एक मेरे ख्याल से एंगल है जो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री को और जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और वो आगे बढ़ के ऑर्गेनाइज करें रादर देन कि उसको गंदा रखें। सर IPO का साइज क्या होगा? 60 करोड़। थैंक यू। थैंक यू।